Good morning, students. Today we are going to discuss about female reproductive system. See, we have discussed male reproductive system earlier and our next topic is female reproductive system. अगर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंपेयर करते हैं देन दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स. रीजन बिहाइंड इट इज, क्या रीजन है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है? बिकॉज you already know that fertilization is going to take place inside the female reproductive system. So fertilization हमेशा कहाँ पर होती है? In female reproductive system. क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मीन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, देन वी कैन से कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल है. और कहाँ होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है. सेकेंड थिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इट इज प्रोवाइडिंग proper media, or you can say it is providing all the facilities for the development of embryo. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, उससे जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इट इज प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज for development of embryo. And the birth of this newborn individual will also takes place from the female reproductive system. So all the important events are taking place in female reproductive system. That's why it is more complex as compared to male reproductive system. So I have drawn a simple diagram of female reproductive system. I'll start labeling each and every part of this female reproductive system, and along with it I'll start talking about each and every part. So let's start with the most important part of female reproductive system, and that is ovary. So the first one I have shown here, this is a ovary, and this side also ovary is present. So we can say pair of ovaries are present in a female. And if you can see from here, there is a stalk like structure, and with this stalk like structure this ovary is attached with the walls of uterus. So this is ligament, and with the help of this ligament the ovary is attached with the walls of uterus. So let's talk about the first part of female reproductive system, that is ovary, or I can write ovaries because pair of ovary are present. Now these ovaries are primary sex organs ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात की थी. जो भी ऑर्गन्स डायरेक्टली गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. दैट मीन्स दीज ओवरीज आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट. ये क्या बनाने वाली हैं? दीज आर गोइंग टू फॉर्म फीमेल गैमीट, and that female gamete will be ovum. Where these ovaries are located, these are small almond shaped structures, and these are located near the kidney. Almond shaped, located near kidney, and function is they are going to form female gamete, and that female gamete is known as ovum. Another function is they are producing gamete plus they are responsible for the release of hormones. गैमीट फॉर्मेशन के अलावा वो हार्मोन सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं. जैसे कि हमने टेस्टिस के बारे में बात की थी. टेस्टिस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, मेल गैमीट,
that is spermatogenesis, and male hormone, that is testosterone. In the same way, ovary is also going to form female gamete, that is ovum. The process is known as oogenesis, and release of hormones. Now difference is, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी टॉक अबाउट ओनली वन सिंगल हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 हार्मोन्स प्रेजेंट हैं. वन इज एस्ट्रोजन and the second one is progesterone. So the exocrine part of ovary is going to form ovum, and the endocrine part of ovary is going to form going to release estrogen and progesterone. Now another difference from male reproductive, अगर हम male reproductive system के comparison में difference करें, another difference is, हमने बात की कि male reproductive system sperms और मेल हॉर्मोन्स को कब रिलीज करना स्टार्ट करता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. उससे पहले स्पर्म्स नहीं बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. बट जब हम ओवरीज की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, बर्थ के टाइम पे ही दिस ओवरी इज हैविंग स्मॉल इमेच्योर फॉलिकल्स. सो ये कहाँ कब से प्रेजेंट हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ फीमेल. बट व्हाट हैपन्स, ये एज इट इज़ इमेच्योर स्टेज में रहते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी अटेन हो जाती है उसके बाद इन्हें मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. एंड अगेन द कन्वर्जन विल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन, बिकॉज प्यूबर्टी से पहले हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स, इसलिए ये इमेच्योर फॉर्म में रहते हैं. दीज आर नोन एज प्राइमरी फॉलिकल्स. प्यूबर्टी के बाद देयर विल बी रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, एंड दीज हॉर्मोन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मैच्योरेशन. सो ऑलवेज रिमेंबर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं. प्यूबर्टी के बाद वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, और मैच्योरेशन किसके इन्फ्लुएंस में होती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स. सो दिस इज अबाउट ओवरीज. ओवरीज आमंड शेप्ड ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एंड लिगामेंट्स की हेल्प से दे आर अटैच्ड विद द वॉल्स ऑफ यूट्रस. प्राइमरी फंक्शन क्या है, गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स. और फीमेल्स में कितने सेक्स हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं, 2. वन इज एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरोन. सो लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस. पहले बात करते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे एक्चुअली होता क्या है. प्यूबर्टी के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एक एंजाइम्स का कैस्केड फंक्शन करता है. ग्लैंड्स कैसे फंक्शन करते हैं, द फर्स्ट सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस. प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये रिलीजिंग हार्मोन्स किसको अफेक्ट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. सो इट इज दिस हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट है, एंड दिस इज गोइंग टू सिक्रिएट सम इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग हॉर्मोन्स. यहाँ पर ये कुछ रिलीजिंग हॉर्मोन सिक्रिएट करती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स रिलीज करने में. सो पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, इट इज गोइंग टू रिलीज FSH, and the second hormone is LH. This is follicle stimulating hormone, and this is luteinizing hormone. So always remember, दोनों हॉर्मोन्स को कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है. हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब्स प्रेजेंट है, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब. विच लोब, एंटीरियर लोब ऑफ
FSH और FLH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। किस टाइम पे ये पूरी फंक्शनिंग कब होती है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब ये FSH क्या करता है? दिस FSH इज गोइंग टू स्टार्ट मैच्योरेशन। किसकी? यहाँ पर जो इमेच्योर प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट है और इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, उनकी मैच्योरेशन कौन स्टार्ट करता है? FSH स्टार्ट करता है। सो फंक्शन ऑफ FSH इज टू स्टार्ट मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी ओवेरियन follicles. So that function is performed by FSH. Now जब ये follicles mature होना start होते हैं, maturation almost कैसे होती है? So cells are present inside और बाहर कुछ cells present होती हैं जो behave करती हैं इसकी covering की तरह, and they are known as follicular cells. So some cells are present inside the ovum और बाहर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक लेयर बनाती हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज फॉलिक्यूलर सेल्स। अब जब ये प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होगा तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन साइज। अब ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, इसकी जो बाहर वाली कवरिंग है फॉलिक्यूलर सेल्स की, दैट इज गोइंग टू रिलीज हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन कौन रिलीज करेगा? जो ओवम है, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल है, उसकी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, दे आर गोइंग टू रिलीज एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन किस में हेल्प करता है? इसकी मैच्योरेशन में हेल्प करता है। मीन्स आफ्टर रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन द मैच्योरेशन, द लेवल ऑफ मैच्योरेशन इंक्रीजेज। सो दिस इज हाउ फर्स्ट फंक्शनिंग इज डन बाय FSH, एंड FSH के बाद फॉलिकुलर सेल्स एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं और इन एस्ट्रोजन के रिलीज होने की वजह से प्राइमरी जो ओवेरियन फॉलिकल है उसकी मैच्योरेशन एनहेंस हो जाती है। अब मैच्योरेशन के बाद जब मैच्योर हो जाएगा प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल, उसके बाद ओवरीज उसको रिलीज कर देती हैं, बाहर रिलीज आउट कर देती हैं, सिक्रीट कर देती हैं, एंड दैट इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या फंक्शन करता है? इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। मैच्योर है, दैट वाई वी आर सेइंग इट इज अ फीमेल गैमीट दैट इज ओवम। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मे प्रोसेस, विच प्रोसेस? रिलीज ऑफ मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल फ्रॉम द ओवरी, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओवरी से जब एक ओवम मैच्योर होके बाहर निकलता है, रिलीज आउट होता है, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ओव्यूलेशन किसके इन्फ्लुएंस में होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है। सो रिमेंबर दीज स्टेप्स। पहले हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करती है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को FSH और LH रिलीज करने के लिए। FSH फॉलिकल्स के मैच्योरेशन को इनिशिएट करता है, बाद में ये फंक्शन कौन करेगा? एस्ट्रोजन करेगा। और LH मैच्योर फॉलिकल को यहाँ से रिलीज आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज हाउ दीज हॉर्मोन्स आर फंक्शनिंग। नाउ जब एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, FSH की वजह से जब एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट हुआ, दिस एस्ट्रोजन इज फंक्शनिंग इन, एक फंक्शन हमने पढ़ा एस्ट्रोजन का, दैट दिस एस्ट्रोजन इज हेल्पिंग इन मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, मैच्योरेशन में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन एस्ट्रोजन क्या करता है? दिस हार्मोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। सेक्शुअल कैरेक्टर्स
प्यूबर्टी के बाद देयर आर सम टाइप ऑफ चेंजेस दैट आर कमिंग इन फीमेल बॉडी, और उन सब चेंजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है. द डीपनिंग इन वॉइस, और यू कैन से मोर डिपोजिशन ऑफ फैट्स अराउंड द थाइज, बटलॉक्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, initiation of menstrual cycle in females. So everything is under the influence of estrogen. So these are the functions of estrogen. जो second hormone present है that is progesterone. Now the point is कि progesterone कौन रिलीज करता है? See what happens, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, एक ओवम प्रेजेंट था, से आई एम कंसिडरिंग दिस वन, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये स्मॉल पार्ट था, ये कंप्लीट मैच्योरेशन में जा रहा है, तो जैसे जैसे मैच्योर होगा इसका साइज बढ़ता जाएगा. ये फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं, इसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया. अब ये जब और ज़्यादा मैच्योर होगा तो अगेन साइज इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज. जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो इनसाइड जो ओवम प्रेजेंट है दैट विल बी रिलीज्ड, ओवम बाहर आ जाएगा. अब ओवम रिलीज होने के बाद जो यहाँ का लेफ्ट ओवर पार्ट बच जाता है, ये फॉलिकुलर सेल्स बाहर बच जाएंगी. मैच्योर होने के बाद हम इसे ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं, और ये पोर्शन निकल जाएगा और बाहर आ जाएगा, बिकॉज ये हमारा क्या था, फीमेल गैमेट था, इट इज़ गोइंग टू कम आउट, और ये खाली स्ट्रक्चर बच जाता है ओवरी के अंदर, बिकॉज इसके अंदर जो ओवम प्रेजेंट था वो बाहर रिलीज हो गया. दिस एम्प्टी स्ट्रक्चर इज लेफ्ट बिहाइंड, और इस एम्प्टी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम. This is corpus luteum, the empty structure of Graafian follicle from which ovum has been released out, and this corpus luteum is responsible for the secretion of second female sex hormone that is progesterone. ये जो corpus luteum है ये second hormone release करता है जिसको हम progesterone बोलते हैं. इसका मतलब जब ovum mature होता है उस टाइम पे एस्ट्रोजन प्रेजेंट है हाई लेवल पर. जब ओवम रिलीज हो जाएगा उसके बाद कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा. सो एस्ट्रोजन इज गोइंग टू फंक्शन फर्स्ट एंड देन प्रोजेस्टेरोन इज गोइंग टू फंक्शन. और प्रोजेस्टेरोन किस में इन्वॉल्व होता है, बेसिकली प्रोजेस्टेरोन इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. और प्रेगनेंसी कब अचीव होती है, व्हेन फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, मीन्स मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होने के बाद जाइगोट बन जाएगा, दिस इज फर्टिलाइजेशन, एंड द वुमेन इज नाउ नोन एज अ प्रेग्नेंट वुमेन. सो एट दैट टाइम दिस प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय प्रोजेस्टेरोन. ये प्रेगनेंसी कौन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है. और इस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. दैट चेंजेस आर लाइक, जो ये अंदर की वॉल्व है ये थिक हो जाएंगी, यहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. तो जैसे भी चेंजेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं, ओवम रिलीज होने के बाद उन सारे चेंजेस के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन responsible है. So progesterone is responsible for changes in the uterus after ovulation. ओवम के रिलीज होने के बाद प्रेगनेंसी मीन्स फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और उसके लिए अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की वॉल्स में बहुत सारे changes करता है. This is the function of progesterone. We will discuss this in more detail when we will talk about fertilization and post fertilization events. तो अभी हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं कि ओवरी क्या फंक्शन करती है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, 2 ovaries आर देयर. दोनों ओवरीज एक साथ ओवम रिलीज नहीं करती हैं. दे आर गोइंग टू फंक्शन इन ऑल्टरनेट मैनर. ऑल्टरनेट मैनर मीन्स one time one ovary is going to release a ovum, second time second ovary is going to release ovum, this will stop functioning. तो एक बार अगर इस ओवरी से ओवम मैच्योर हो रहा है
तो अगली बार ये ओवरी ओवम मैच्योर नहीं करेगी, द नेक्स्ट ओवरी इज गोइंग टू मैच्योर द ओवम और ओव्यूलेशन यहाँ से होगा. How many? The time period is 28 to 30 days. Almost it is 28 days. So in females a cycle is running and that cycle is of almost 28 days. So one time this ovary is going to function and next after 28 days this ovary is going to function. This is known as menstrual cycle. We will talk about menstrual cycle also. So that's about ovary. This is how the ovaries are functioning. Now let's talk about the second structure of female reproductive system that is present near to ovaries. You can see two arm-like structures are there and these arm-like structures are present. This end of the arm-like structure is present near the ovary. दो आर्म्स यहाँ से निकली हुई हैं, ये वाला साइड ओवरी के कॉन्टेक्ट में है और ये वाला जो पार्ट है ये यूट्रस, दिस इज द यूट्रस पार्ट, ये यूट्रस के कॉन्टेक्ट में है. सेम वे दिस पार्ट इज इन कॉन्टेक्ट विद ओवरी एंड दिस बैक साइड पोस्टीरियर पार्ट इज इन कॉन्टेक्ट विद द यूट्रस. दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब. ये क्या स्ट्रक्चर है? दिस इज फेलोपियन ट्यूब or you can say oviduct. Both fallopian tube and oviduct are name of one single structure. So let's talk about fallopian tube. The second part of female reproductive system is fallopian tube. Fallopian tube is very important. Fallopian tube को हम बहुत सारे parts में divide करते हैं. So let's talk about the parts first. फर्स्ट आर दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स. जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से निकले हैं, दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फिम्ब्री. इन्हें हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्री बोलते हैं. सपोज दिस इज ओवरी, ये ओवरी है और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से इस ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है. इनका क्या फंक्शन है? जैसे ही ओवरी से ओवम रिलीज होगा दे आर गोइंग टू कैच दिस ओवम. सो इनका फंक्शन है यहाँ से ओवम को होल्ड करना. सो दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट लाइक दिस वे. ये ओस्टियम की हेल्प से, द ओपनिंग इज नोन एज ओस्टियम, और ये ओस्टियम ओपन होता है पार्ट में, दिस पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम. सो फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है जो बिल्कुल ओवरी के साथ प्रेजेंट है दैट पार्ट इज इनफंडिबुलम, और इस इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं जो ओवम को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर हम इनफंडिबुलम से आगे की तरफ मूव करते हैं, हेयर एम्पुला इज प्रेजेंट, सेकेंड पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब दैट इज मोर ब्रॉड एंड ओवर हेयर isthmus is there. So these are important parts of fallopian tube. Over here infundibulum is there, ampulla and isthmus is there. अगर हम इनके इनर लाइनिंग की बात करते हैं, these cells or you can say the inner epithelial lining is made up of ciliated epithelium. यहाँ पर cilia present होते हैं. So their inner side is made up of ciliated epithelium. Now how they are functioning? See, यहाँ से ओवम रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ने ओवम को होल्ड कर लिया और ये ओवम कहाँ आ गया? इस इनफंडिबुलम रीजन में आ गया. अब इस इनफंडिबुलम रीजन से इसको किस तरफ मूव करना है? लाइक दिस वे. इट इज गोइंग टू मूव लाइक दिस वे. इस डायरेक्शन में मूव करना है. अब मूवमेंट को कौन फैसिलिटेट करता है? ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, दे आर गोइंग टू मूव देयर सीलिया, और इन सीलिया की मूवमेंट की वजह से ये ओवम इस डायरेक्शन में मूव करता है. नाउ व्हेन दिस ओवम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टेक्स प्लेस ओवर हियर, दैट इज फर्टिलाइजेशन.
सो जब ये ओवम यहाँ मूव करता है, इट इज़ गोइंग टू रेस्ट हेयर इन एम्पुला रीजन, ये थोड़ी देर स्टे करता है और इसी एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है। दैट मीन्स जब ओवम रिलीज हुआ, अगर उस टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं, देन मेल गैमेट्स विल फर्टिलाइज विद द फीमेल गैमेट। और लोकेशन क्या होगी फर्टिलाइजेशन की? लोकेशन विल बी द एम्पुला रीजन ऑफ फिलोपियन ट्यूब। यहाँ पर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। सो दिस एम्पुला इज समवट मोर ब्रॉड, ज़्यादा ब्रॉड है, एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग अ अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ fertilization. So this is important about fallopian tube. You are asked that where fertilization is going to take place, that is fallopian tube. Which part of fallopian tube? That is the ampulla region of fallopian tube where fertilization is going to take place. So this fallopian tube is a tubular structure of almost 12 centimeter in length. और इसका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है इसका टू रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरी, ओव्यूलेशन के बाद ये ओवम को रिसीव करता है। और इसका सेकेंड फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवम, सीलिया की हेल्प से ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। सो मूवमेंट टेक्स प्लेस। और इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? दैट इट इज प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। सो दिस इज हाउ फिलोपियन ट्यूब इज फंक्शनिंग। थोड़ी बहुत बात अगर हम फर्टिलाइजेशन की करें, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट फर्टिलाइजेशन। सी वी नो फर्टिलाइजेशन इज कि दो हैप्लोइड गैमेट्स, one is male gamete and one is female gamete is going to fuse and they are going to form a single celled diploid structure। और ये single celled diploid structure क्या है? zygote है। और ये zygote कहाँ बना है? in this region, in this part, the ampulla part। अब जो zygote बना है, this zygote is undergoing cleavage, simply means यहाँ पर systematic way में division होता है। और division कैसा होगा? माइटोटिक डिवीजन, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब हमेशा कैसे रहेंगे हर एक सेल में? 2n। और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये बहुत सारी स्टेजेस से जाता है। इट इज गोइंग टू फॉर्म मोरुला। वन स्टेज इज नोन एज मोरुला आफ्टर डिवीजन, दैट इज द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो है जिसके हमने डिफरेंट डिवीजन्स के बाद डिफरेंट नेम्स रखे हैं। अनदर इज ब्लास्टुला। जब इसमें और ज़्यादा फर्दर डिवीज़न होगा देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ब्लास्टुला। और ये स्टेजेस कहाँ हो रही हैं? दीज आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द फिलोपियन ट्यूब। मीन्स जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज होती है, डिवीज़न होती है, मोरुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला स्टेज आती है। कब तक? फिलोपियन ट्यूब तक। इसके बाद क्योंकि जब सेल डिवीज़न हो रही है तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगी तो साइज़ उतना ही इंक्रीज़ होगा। फिलोपियन ट्यूब अब इस ग्रोइंग साइज को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए अब इस ब्लास्टुला को कहाँ एंटर करना पड़ेगा? इनटू द यूट्रस। यूट्रस ज़्यादा ब्रॉड है फिलोपियन ट्यूब के कंपैरिजन में, सो दैट्स व्हाई दिस ब्लास्टुला इज गोइंग टू एंटर इनटू यूट्रस। और ये कब होता है? आफ्टर ऑलमोस्ट 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के 7th डे पर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके 7 दिन बाद एम्ब्रियो कहाँ पर पहुँच जाता है? यूट्रस में पहुँच जाता है। और यूट्रस में इट इज़ गोइंग टू अटैच। ये फ्लोटिंग नहीं रहता है, ये अपने आप को कहाँ अटैच करेगा? विद दी वॉल, जो यूट्रस की वॉल है उसके साथ अटैच कर लेगा। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। We will discuss more about it when we are going to talk about uterus. So always remember, some steps are going to take place in fallopian tube and later on some are going to occur in the uterus. तो fertilization fallopian tube में हुई, zygote
एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता गया, मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, और ब्लास्टुला स्टेज के बाद इट इज गोइंग टू अटैच इटसेल्फ विद द वॉल्स ऑफ द यूट्रस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट दिस uterus part and other remaining parts of fallopian tube.